براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مرے ہوئے لوگوں کی بھی ویکسینیشن کی بریکنگ نیوز دی جا رہی ہے۔ یہ کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ این سی او سی نے اتنا زبردست کام کیا ہے، اتنا زبردست کام کیا ہے، اکنالجمنٹ ہوئی ہے، اور ہماری اگر ویکسینیشن کو آپ دنیا میں مشکوک کر رہے ہیں تو یہ آپ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اور عمران خان کی دور اندیشی سے ہم نے کووڈ-19 پر بغیر پابندیوں کے اور بغیر کرفیو لگائے اسے بہتر بنایا، لیکن جب اس کا ثمر عام آدمی کو پہنچنے لگا ہے تو اس کی ویکسینیشن کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تھرڈلی اور فورتھلی پولیٹیکلی مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑے خونی قسم کے بیانات دے رہی ہیں فوج کے خلاف، اور یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ اس ملک کی وہ فوج جنہوں نے 86,000 جانوں کی قربانیاں دی، لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اور سب سے پہلے عام آدمی کی امداد کے لیے پہنچتے ہیں، کیونکہ فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے اس کے خلاف غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کر کے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ جلد یا بدیر ان کو ان مسائل سے گزرنا پڑے گا، اور آج یہ جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی محترمہ ہے، اور کل جو یہاں سیاست سے فارغ ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی ان پر آئے گی۔ 5 منٹ ہو گئے، اینی کویسچن پلیز۔ دیکھیں الزام تو کسی پہ بھی لگ سکتے، شارٹ سا سوال کریں نا، 5 منٹ ہے۔ دیکھیں جرنیلز کی ٹرانسفر جو ہوتی ہے، پروموشن اور پوسٹنگ جو ہوتی ہے، معمول کا کام ہے، لیکن پاکستان کے حساس اداروں کو ہم اٹھ کر اگر نشانہ بنائیں تو یہ غیر ذمہ داری کی انتہا ہے۔ یہ بھی ہم کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں۔ جرنیل آتے ہیں، جرنیل کیا ایک 76 گروپ سے ہے، ایک 77 گروپ سے ہے، اور ایک چکوال سے تھے، اور یہ گجر خان سے ہیں، اور پروموشن جو ہے، پوسٹنگ جو ہے وہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر اس کو بھی آپ سوالیہ نشان بنائیں گے تو مجھے بہت افسوس ہے۔ 5 منٹ پورے تو جی۔ ساری فوج نے زبردست تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ آف کورس میری 15ویں وزارت ہے، اور یہ ان کی قومی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ہماری فوج ہے اور یہ اس کی قومی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ٹڈی دل ہو، زلزلہ ہو، آفات ہو، سیلاب ہو۔ ساری دنیا میں آج برطانیہ میں کیا ہوا ہے جی؟ وہاں پیٹرول کے ڈرائیور نہیں ملے تو کیا فوج کو کال نہیں کیا گیا؟ کیا واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ کے وقت فوج نہیں کال ہوئی؟ اور انڈیا کے حالات دیکھیں، کیا حالات بنے وہاں، کیا اس کی صورتحال بنی۔ کیا ہم پاکستان جیسے حساس ذمہ دار اداروں کو اگر اس طرح میڈیا پر سوال و جواب کریں گے تو بہت غیر ذمہ داری ہے۔ میں دیکھیں یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، میرا فرد جو ہیں وہ ہی ادارہ ہوتے ہیں، فرد کے نام سے ادارے ہوتے ہیں۔ یہ صلاحیتوں کے ایک دن میں کور کمانڈر نہیں بن جاتا۔ کور کمانڈر کے لیے ایک زندگی صرف کرنی پڑتی ہے، پہاڑوں پہ، دریاؤں پہ، ریگستانوں میں، ریگزاروں میں، اور اتنی ہارڈ جاب کرنی پڑتی ہیں کہ جس کا پہلے ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ سو کائنڈلی یس، دیکھیں وہ ثابت ہو گیا کہ نیوزی لینڈ کے مسئلے میں انڈیا ملوث تھا اور ہے، اور ہم نے جتنی اس کو سیکیورٹی دی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور میں نے تحقیق کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ ایز اے انٹیریئر منسٹر جتنی سیکیورٹی نیوزی لینڈ کو پرووائڈ کی گئی ہے اتنی تو ان کی فوج نہیں ہے۔ ہم نے 8,000 بندے دیے ہیں، وہ 7800 آدمی ہیں۔ مظہر صاحب صوبائی حکومت NFC کو بچانے کے منصوبے ان پہ نہیں کرے گی، اپنوں کو بچانے
دیکھیں اپوزیشن کا، اگر ہم بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ایک بڑا المیہ تھا کہ ہر لوگ جو فائل نہیں موو ہوتی تھی، بزنس مین کو اعتراضات تھے، تو آئیں مل بیٹھے بات کریں. ابھی کوئی، میرا مطلب ہے یہ قانونی کام کیا گیا ہے، یہ آرڈیننس آیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے ان ساری چیزوں کو سہولت دینے کے لیے کہ جو لوگوں کے آبجیکشنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا. دیکھیں مجھے بطور انٹیریئر منسٹر مختصر سا سوال، کس کے خلاف؟ اچھا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. ویسے دیکھیں اگر تو خبر کی حد تک ہو تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ اس کے مضمرات دیکھیں، اس کے آفٹر ایفیکٹس دیکھیں، اس کے آفٹر شاکس دیکھیں کہ یہ دنیا میں جو ہمارا مزدور جا رہا ہے اس کی ویکسینیشن کو کوشچن مارک بنایا جا رہا ہے، اور اس کو میں دیکھ لیتا ہوں. باقی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا میں نے پرسوں بھی کہا تھا، آپ کے احترام میں میں سی ایم کو ملنے آیا تھا پنجاب کو، آپ نے حکم دیا، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. دیکھیں میں ایسے زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں جو پارلیمانی انداز ہو. آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جی بھائی صاحب. میں جب بات کسی طرح شروع ہوگی، سیریسلی کوئی بات بڑھے گی، ہماری یہ خواہش ہے کہ نہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو، نہ ہماری زمین ان کے خلاف استعمال ہو، اور اس میں وہ لوگ جو کہ یہاں مختلف کیسوں میں مطلوب ہے یا ملوث رہے دہشت گردی میں، ان کے لیے ایک اور پیمانہ ہے. اور جو لوگ نقل مکانی کر گئے ان کے بارے میں بات چیت چلی تھی، کوئی بات چیت میرے نوٹس میں نہیں کہ وہ شروع ہوئی یا ختم ہوئی. لاسٹ طریقے سے آپ کا ایک سوال ہو گیا، سوال کریں نا، کیمرہ بعد میں لے آنا. یار اگر سوال کریں گے آپ خبر پڑھ رہے ہیں، جو آئے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی امداد کریں گے. سیکنڈ لاسٹ میرا خیال ہے جب الیکشن ہوں گے 2 سال بعد، دیکھیں اب 2 سال کے بھی دیکھیں 2 مہینے اور کم ہو گئے ہیں. آخری 6 مہینے تو آپ کو پتہ ہے، آخری 6 مہینے تو کمپین کے ہوتے ہیں، عبوری حکومتوں کے ہوتے ہیں. میں نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کی اس صورتحال کو میں نئی کیا کہتے ہیں الائنمنٹ دیکھ رہا ہوں الیکشن کے قریب. میں الیکشن کے قریب نئی الائنمنٹ دیکھ رہا ہوں. عمران خان کا ساتھی ہوں، اس کے ساتھ آئے ہوں، اس کے ساتھ جاؤں گا. شارٹ کوسچن، شارٹ اینڈ سمال. ابھی پتہ نہیں، انتظار کریں، ویٹ اینڈ سی. اف دیر از لاسٹ کوسچن ملک صاحب، اس کے بعد مظہر، سیکنڈ لاسٹ اینڈ لاسٹ. پورے ہو گئے ہیں 10 منٹ. میں آج ملک صاحب آپ کو ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں، ہم سارے لوگ اپنا چورن آپ کے سامنے بھیج رہے ہیں. بد نصیبی ہے اس ملک کی، 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں. میں 4 دفعہ، میری 15ویں وزارت ہے، 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، لیکن میں نے اتنا، اگر آپ لوگ ان کو کور نہ کریں تو آپ سے یہ 24 گھنٹے پورے نہیں ہوں گے. آپ کو میرا مطلب ہے ان سے پیسے لینے چاہیے، ایڈورٹیزمنٹ کے ان سے پیسے وصول کریں چینل، کیونکہ یہ پلان ایسا کرتے ہیں کہ جا رہے ہیں کرپشن کے کیس میں اور گھر سے پیچھے لے کے جاتے ہیں پھولوں کا وہ تھیلا اور پھینکواتے ہیں، اینٹیں بھی بعض اوقات ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور پھر وکٹری کے نشان، ان سے ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے لیں چینل. اور یہ کیا کر رہے ہیں اپوزیشن. لاسٹ کوسچن جی مظہر آپ کا ہو گیا. مظہر کا نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ مفاہمت ہو یا مزاحمت ہو یا فلاں ہو، ان کا ٹائم گزر گیا. They have left the train and express train never wait the passenger. Last.
शहबाज शरीफ जो, अब मैं क्या कहूँ मज़र आपको, शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। ये घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। आखिरी शेर पे करता हूँ, यूं रो के तू अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज खूनी किस्म के बयानात आर्मी के खिलाफ दे रही है। सारी फौज ने ज़बरदस्त तहम्मुल का मुजाहरा किया है। पाक फौज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान के हसास इदारों को निशाना नहीं बना सकते। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात की। कहा कि हम अफगानिस्तान की इमदाद जारी रखेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मलबे तले दबकर 20 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। 200 से ज़ायद मकानात मलबे का ढेर बन गए। इलाके में पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने क्वेटा और हरनाई के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। हरनाई में ज़लज़ले ने कली इस्लामाबाद के इलाके में हाजी बशीर का घर ही तबाह नहीं किया बल्कि उनके प्यारों को भी छीन लिया। ज़लज़ले में उनकी अहलिया और 2 बेटों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हाजी बशीर के लिए घर की तबाही से ज़्यादा तकलीफ दे अपनों को खो देना है। हरनाई के अलावा ज़िले के मुख्तलिफ देहात भी ज़लज़ले से शदीद नुकसानात से मुतासर हुए। मुतासर अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद इस वक्त एक ऐसे ही गाँव में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद सूरत हाल जानते हैं। मंजूर, बताइए। जी, अब हम अरनाई शहर के नवा में देहात है किली मिर्ज़ा, यहाँ पर मौजूद हैं। इस देहात में ज़लज़ले के नतीजे में 3 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और तकरीबन 5 से ज़ायद यहाँ पर ज़ख्मी हैं, जिनमें ज़्यादा शामिल हैं। जिस घर में हम मौजूद हैं इसमें एक मुकम्मल कमरा जो है वो तबाह हो गया है। अब तरीके से सजाया गया था, लेकिन किसे मालूम कि इस ज़लज़ले के जद में आकर ये कमरा ज़मीबोस होगा। इस घर के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कितना नुकसान हुआ है आपका इस ज़लज़ले में? जी, हमारा ये घर का सामान, कमरा और एक छोटा बच्चा वफात पा चुका है। 3 बंदे जो है हमारे ज़ख्मी हैं। घर में 10-15 लोग होंगे। इसी तरह यहाँ पे टेंट मेंट कुछ नहीं है। हम हुकूमत से अपील करते कि हमें कुछ इमदाद पहुँचाएं। जबकि इसके अलावा बाकी जो कमरे हैं वो बुरी तरह डैमेज हुए हैं और वो रहने के काबिल नहीं है। यही वजह है कि ये घर और इसी तरह इस किले में जो दीगर घर हैं जो मुतासिर हैं उनके मुकीन परेशान हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन तक इमदाद और खैमे पहुँचाए जाए ताकि उनकी जो आने वाली रात है वो गुजर सके। जी, उधर वज़ीर आज़म इमरान खान का बलूचिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर दुख और इजहार अफसोस। ज़लज़ले से होने वाले नुकसान और मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी गई है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि वफाकी हुकूमत मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने मुतालिका इदारों को बलूचिस्तान हुकूमत की हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत कर दी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें। वज़ीर आज़म की सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर प्लानिंग असद उमर शरीक है। मज़ीद कौन कौन से वज़रा इस इजलास का हिस्सा है, बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। बताइएगा। देखिए, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, मुराद सईद, हमाद अजहर, खुसरो बख्तियार, शफकत महमूद और आज़म खान समेत जो बाकी वफाकी वज़रा हैं, गुलाम सरवर खान और पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह न्याजी, ये इस इजलास में शरीक है। इसके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम न्याजी को भी बुलाया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस इजलास में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, पार्लिमानी और सियासी सूरत हाल समेत जो सलामती के मामलात हैं उन पर किया जाएगा। इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ मामलात इस इजलास में रखेंगे। कोर कमेटी को अहम कौमी और आलमी सतह के फैसलों पर भी आगाह किया जाएगा और वज़ीर आज़म उन्हें एतमाद में लेंगे। तो पार्टी को मज़ीद किस तरह से मुनज़्ज़म किया जाएगा, बल्दियाती इंतखाबात अगर हुए तो उस सिलसिले में पार्टी का क्या किरदार रहेगा, किस तरीके से तैयारियां की जाएंगी, इन सारे मामलात का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने ये इजलास बुलाया था जो इस वक्त शुरू हो चुका है। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। मुस्लिम लीग नून ने एहतसाब के तरमीमी ऑर्डिनेंस को बदतरीन काला कानून करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ऑर्डिनेंस हुकूमत, करप्ट वज़रा और 700 अफराद के लिए NRO है, इसका भरपूर मुकाबला करेंगे।
मुकम्मल तौर पर बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत की करप्शन के लिए NRO है, अदलिया पर हमला है। जो NRO आज उन लोगों को दिया गया है जो काबीना में बैठे हैं, जिन्होंने चीनी के फैसले किए, जिन्होंने गंदम के फैसले किए, LNG के, तेल के, ड्रग्स के, एक लंबी लिस्ट मौजूद है। हजारों अरब पाकिस्तान के अवाम का लूट चुके हैं। सबसे बढ़कर जो 700 नाम अभी आए उनको NRO है। लिखा हुआ है टैक्स चोरी इस्तिस्ना है नैब से, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इस्तिस्ना है नैब से, कंपनियां छुपाना भी इस्तिस्ना है। इसका मुकाबला करना हमारा हम अपना फर्ज समझते हैं। इलेक्शन की तैयारी करती है, इस हुकूमत का हर लम्हा भारी। काला कानून जो ऑलरेडी मौजूद था उसको मजीद उसके ऊपर कालख मल के उसके जरिए जो है अपने जो है वो सारे के सारे मामला साफ कर रहे हैं, और ये हम नहीं होने देंगे। वक्त आएगा इनका गिरेबान पे भी पाकिस्तान के अवाम के हाथ पहुंचेंगे। इसको दो लोगों को सामने रख के बनाया गया है। इस तरह से हुकूमत ने मुस्तकबिल में एहतसाब से बचना है, और दूसरे जो हुकूमत के मुखालफीन हैं जिनको इलेक्शन से पहले वो ज़बरदस्ती अपने मनपसंद जजों के ज़रिए सजाएं दे के अपने रास्ते से हटाना चाहती है। 12 किस्म की तरामीम की गई हैं नैब ऑर्डिनेंस में, वो कानूनन आइनी तौर पे मुमकिन नहीं है। बार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे मुफस्सल मुशावरत करके फिर जो पार्टीज़ के कायदीन हैं जो लाहे अमल मुरतब करेंगे उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। हमारे पास ऐसे फैसला जात मौजूद हैं जो कि इस काले कानून को चैलेंज करने के लिए हमें उनकी मदद मिलेगी, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये कानून ख़त्म होगा। ऑपोजिशन की 34 शिकों में NRO था। करप्शन से हाथ रंगने वाले NRO के पीछे छुप रहे हैं। वजीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब का लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब। जिनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं, मुका के ऊपर जो है वो यकीन रखते थे, NROs के पीछे जो है वो छुपते रहे हैं। अपोजिशन वो 34 शिकों का नैब की अमेंडमेंट्स थी, इनके लिए NRO थी। मुशावरत का बड़ा इनको शौक है। मुशावरत करने का मतलब तो यही है कि पूरा का पूरा टब्बर चोर है, उनसे पूछे कि आपका तफ्तीशी कौन सा लगाना है। ये आपकी फरमाइश जस्टिस रिटायर्ड कयूम ने पूरी की थी, आपके कहने के ऊपर जो है वो फैसले किए थे। ये तो कहते थे नैब को बंद कर दें, जब तक मुशावरत का अमल जारी होगा। फिर मैंने आपसे निकम्मी ऑपोजिशन भी कोई नहीं देखी जी। चीनी स्कैंडल को NRO दे दिया, आटा स्कैंडल को NRO दे दिया। आप किसी एक स्कैंडल को लें और उठा के किसी इदारे पे चले जाएं। वो काला तिलिस्मी कोड कहाँ है जो नवाज शरीफ पहन के मेमो गेट के ऊपर गए थे? इनके रास्ते की जो रुकावट है वो इमरान खान है। आज इमरान खान पीछे हट जाएं, ये लोग आपको लुडियां डालते नजर आएंगे। ऑपोजिशन लीडर ये फैसला कर लेंगे कि मैं अहल ही नहीं हूं मुशावरत के अमल के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा 7 अरब का TTs का केस है, तो ये प्रोसेस आसान हो जाएगा। बहुत जल्द नैब चेयरमैन की तैनाती हो जाएगी। इस मुसव्वदे का मुताला कर लें। बेल की जो राइट हमने ट्रायल कोर्ट को दी है, आसानी पैदा कर दी। आप जैसे मुल्जिमों के लिए बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं पाकिस्तान के अंदर, टेन्योर होता है, एक्सटेंडेबल होता है। कानूनी शहादत को कैसे तब्दील कर दिया हमने, तो एक एविडेंस लेने का नया तरीकेकार बताया है। हम वैसा नैब नहीं चाहते जो टूथलेस हो, बाख्तियार नैब चाहते। मामून खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं दरबारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस एहतसाब सबूताज करने की नाकाम कोशिश है। नैब और एहतसाब नाअहलों के हवास पर छाए हुए हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस में इनकी परेशानी रोजाना ट्रायल की तजवीज़ से है। ये 6 माह के अंदर फैसले सुनाने की तजवीज़ से भी हवास भागता है। नाअहलों ने पहले एहतसाब को मुतनाज़े करने की कोशिश की। इनकी कोशिश है एहतसाबी अमल को कमज़ोर और सुस्त किया जाए। जबकि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। सिलेक्टेड हुकूमत ऑपोजिशन को मुसलसल निशाना बनाए रखना चाहती है। खुसूसन पेंडोरा पेपर्स के बाद वज़ीर आज़म, अहले खाना और हवारियों को एहतसाब से बचाना है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं नैब इसलिए बनाई गई थी एक आज़ाद इदारा हो जो हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस रख सके, लेकिन इनको हाउसिंग सोसाइटी के झगड़ों में डाल दिया गया। सारी कौम मायूसी का शिकार है कि केसेस चलते रहते हैं। ये भी थी, सूबों में एंटी करप्शन भी थी और ये सारे इदारे थे, तो नैब बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नैब बनाया गया इसलिए कि जी ये तो सारे इदारे जो हैं ये एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत के मातहत हैं, तो एक आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके कि जो सियासतदान बैठे हुए हैं जो फैसले कर रहे हैं उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस। उनको आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ के आपस के झगड़ों के अंदर डाल दिया, तो और उसकी वजह से हुआ क्या? सारी कौम को ये फ्रस्ट्रेशन है कि जी केस चलते रहते हैं, कोई सिरे ही नहीं कोई लगता। तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि जो बुनियादी मकसद है नैब का, यानी एक ऐसा इदारा जो हुकूमत के ऊपर जो बैठे हुए हैं जो फैसले कर रहे हैं
सियासतदान उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकें। वापस आएंगे बाद। अहम खबर आपसे शेयर करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 के बजाय 4 माह में इंतखाबात कराने की तरमीम की तजवीज़ दे दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं इंतखाबी अमले की तरबियत तैयारी के लिए 4 माह का वक्त दरकार होता है। इख्तियारात वाला मामला हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है। आइन में पहले ही बल्दियाती इंतखाबात के लिए वक्त मुकर्रर है। सेक्रेटरी वजारत कानून ने कहा कि आर्टिकल 140A में बल्दियाती इख्तियारात वाज़े हैं। आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं, वक्त और इख्तियारात वाज़े हैं। कायमा कमेटी ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के बिल मामूली तरमीम के साथ मंजूर कर लिए। मुद्दत पूरी होने या क़ब्ल अज़ वक्त तहलील पर 4 माह में बल्दियाती इलेक्शन कराना होंगे। सूबाई हुकूमतें नया बल्दियाती कानून लाना चाहें तो इंतखाबात से 1 साल कबल लाने की पाबंद होंगी। कायमा कमेटी ने सूबाई हुकूमतों को बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने की सिफारिश कर दी। CPAC का मतलब तरक्की, खुशहाली और रोजगार है। अब पूरा खैबर पख्तूनख्वा इसमें शामिल हो गया है। सूबे के अवाम सम्राट समेटेंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ ने 20 तक के मुआहदे किए, अवाम बिजली इस्तेमाल करे ना करे पैसे देते हैं। CPAC का मतलब तरक्की, खुशहाली, रोजगार और अब पूरा खैबर पख्तूनख्वा भी इसमें शामिल हो गया। मुबारक हो आप सबको। 20 साल तक नवाज शरीफ ने मुआहदे किए कि आपके घर में अगर एक छोटा सा बल्ब भी है, एक पंखा है, आप बिजली इस्तेमाल करो ना करो, आपने उनको पैसे देने हैं। इमरान खान उन मुआहिदों को भी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। 10 नए डैमों पे इमरान खान ने काम शुरू किया और इंशाअल्लाह इन डैमों के बनने के बाद हमारी जो काश्तकार और जरी जमीन है उसको फायदा पहुंचेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, माहौल दोस्त और सस्ती बिजली इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। अब स्पोर्ट्स। इस्लामाबाद में सेनेटर रजा रबानी की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता का इजलास हुआ। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने बोर्ड की 3 साला कारकर्दगी और न्यूजीलैंड के साथ सीरीज मनसूखी पर कमेटी को ब्रीफिंग दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।